اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام رخ کربلا کے ساتھ ذاکر اہل بیت سید محمد وحاد زیدی حاضر خدمت ہوں۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، یا لیا توجہ فرمائیں، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ کرار نہ جرار نہ یہ خیبر میں علم، نہ کرار نہ جرار نہ یہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے۔ تو جس نے عمر بھر نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ جی اعزان محترم، آج 8 محرم الحرام ہے، خیام حسینی پہ پانی بند ہو چکا ہے، لیکن اعزان محترم ساتھ ہی ساتھ آج کا دن منسوب ہے ایک ایسی ہستی سے کہ جو دعائے علی ہے، جو تمنائے بطول ہے۔ اعزان محترم آج کا دن منسوب ہے مولا عباس، آج کا دن منسوب ہے اس سے کہ جو علمدار ہے، آج کا دن منسوب ہے اس سے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں علم ایک بار اٹھایا، لیکن ایسے اٹھایا کہ علم آج اسی کے نام سے جانا جاتا ہے اور علمداری اسی کے نام سے منسوب ہے۔ اور یہ جو علم ہے یہ بھی عباس کا علم ہے۔ بھائی، علم اٹھانے والے کوئی پہلے شخص نہیں ہے عباس۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بنی ہاشم کی تاریخ میں صرف عباس نے علم نہیں اٹھایا، علم حمزہ نے بھی اٹھایا ہے، علم علی نے بھی اٹھایا ہے، لیکن عباس کے نام سے کیوں علم منسوب ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حمزہ نے علم اٹھایا، علم کے سائے میں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، یا علی توجہ فرمائیں، حمزہ نے علم اٹھایا، علم کے سائے میں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ خود مولا کائنات نے، اس نے جو کل ایمان ہے، توجہ فرمائیں، اس نے جو کل ایمان ہے، وہ جو امیر المومنین ہے، خود جب انہوں نے علم اٹھایا تب بھی علم کے سائے میں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن جب عباس نے علم اٹھایا تو اس شان سے اٹھایا کہ اس کے بعد آپ کو علم کے نیچے کرار نظر آئیں گے، فرار نظر نہیں آئیں گے۔ توجہ ہے نا زان محترم، 4 شعبان کو مولا عباس عرش سے فرش کی زینت بنے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات ہیں، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آیا، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آیا۔ اعزان محترم، ہمیں ایسا کب دیکھنے کو ملتا ہے؟ مدینے کی گلیاں ہیں، آگے آگے رسالت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے۔ وہی ہمیں مکے کی گلیوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، آگے آگے رسالت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے۔ لیکن اعزان محترم، علامہ عبدالرزاق موسی مکرم یہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ آیت علی نبی کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہماری نظر میں ایک اور جوڑی ہے جو اس آیت کی مصداق نظر آتی ہے۔ 3 شعبان کو حسین آفتاب امامت بن کے چمکے، تو 4 شعبان کو عباس قمر بنی ہاشم بن کر چمکے۔ عزیزان محترم، مولا عباس اور مولا حسین کے درمیان بے تحاشا محبت تھی، یہاں تک کہ جب مولا عباس کی ولادت ہو گئی تو لوگ آتے تھے، مولا عباس کے چہرے کو دیکھتے، مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے، پھر مولا عباس کے چہرے کو دیکھتے، پھر مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے، پھر مولا عباس کے چہرے کو دیکھتے، پھر مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے، اور مبارک دیتے چلے جاتے، مبارک دیتے چلے جاتے۔ اچھا، وجہ کیا تھی بار بار عباس کے چہرے کو اور علی کے چہرے کو دیکھنے کی؟ وجہ
अज़ान मोहतरम इसकी हमें जंग सिफ़ीन में मिल जाती है। तवज्जो फरमाएं, अब्बास अली की मुकम्मल शबीह कैसे जंग सिफ़ीन में जब मौला कायनात ने अब्बास को मैदान में भेजा तो गए अब्बास थे, लेकिन चारों जानिब से एक ही सदा आ रही थी कि अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। तो जाने मोहतरम लोग मुबारकबाद देते हैं, चले जाते हैं। इमाम हुसैन आए, पूछा कि बाबा जान नाम क्या रखा है? मौला फरमाते हैं हुसैन अभी नाम नहीं रखा, आप बताएं आप नाम रखेंगे। मौला फरमाते हैं हिर्ज़े तौहीद का कास कहेंगे इनको, बाबा हम आज से अब्बास कहेंगे इनको। और मेरा दिल कहता है कि जब इमाम हुसैन और मौला अब्बास की इस मोहब्बत को जनाब यूसुफ ने देखा होगा, देखकर रब से बोले ये हजरत यूसुफ, रब से बोले ये हजरत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता, इतने भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। बोला होगा खुदा ये यूसुफ से हक्का अलमास कैसे दे देता, बोला होगा खुदा ये यूसुफ से हक्का अलमास कैसे दे देता। तू न शब्बीर है और ना ही माहे बतूल, फिर मैं अब्बास कैसे दे देता। सारे मोहतरम ये दिन था कि जिस दिन से मौला अब्बास ने इमाम हुसैन के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। जाने मोहतरम यहाँ तक के रिवायात में है कि जब मौला अब्बास की विलादत हो गई तो आप आंखें नहीं खोल रहे थे, लेकिन जब इमाम हुसैन की गोद में आए तो आपने अपनी आंखों को खोला और आंखों को खोलकर कमरे बनी हाशिम ने सबसे पहले उसकी ज़ियारत का शरफ हासिल किया कि जो फर्जंद रसूल है, जो इमामत की तीसरी कड़ी है, जिसके आने से पंजतन मुकम्मल हुए। जाने मोहतरम इमाम हुसैन और मौला अब्बास की मोहब्बत के बारे में यहाँ तक मिलता है कि एक रोज़ मस्जिद कूफा में मौला कायनात मिंबर पे थे, मौला हुसैन भी बैठे थे, मौला अब्बास भी थे। मौला अब्बास ने मौला हुसैन के चेहरे को देखा। मजमा अली को देखता है, अली मजमे को देखते हैं, लेकिन अब्बास हुसैन को देख रहे हैं। मौला के चेहरे को देखा, आपको महसूस हुआ कि मौला को पानी की ज़रूरत है। अब्बास कम उम्र थे, अब्बास छोटे थे, लेकिन मौला अब्बास कमसिन होने के बावजूद भी अपने हाथों में पानी का कूज़ा लेकर आए जिसमें से पानी छलक रहा था। और जब मौला अली ने देखा तो मौला तड़प कर अपने मिंबर से ही रोने लगे। ज़ाने मोहतरम, और वो यही दिन थे कि जिन्हें याद करके मौला गिरिया कर रहे थे और मौला रो रहे थे। ज़ाने मोहतरम, रोज़े आशूर मौला अब्बास बार बार मौला हुसैन से जंग की इजाज़त मांगते, मौला हुसैन इजाज़त ना देते। अब्बास एक खैमे से टेक लगाए खड़े थे। खैमा कोई आम खैमा ना था, खैमा वो था कि जिसमें पूरे काफिले के मशकीज़े बच्चे बार बार अंदर जाते थे, मशकीज़ों को लड़ते थे, लेकिन एक पानी की बूंद भी ना निकलती थी। सकीना अब्बास के पास आई और आके फरमाती है, चाचा अब्बास आप, मैं चाहती हूँ कि मुझे पानी पिला दे। मौला ने गोदी में लिया, फरमाते हैं कि सकीना बस यही अल्फाज अपने बाबा के सामने दोहरा, गोदी में लिए अब्बास फख्र से सकीना को मौला हुसैन के सामने गए और बीवी फरमाती है कि बाबा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चचा को मैदान में जाने की इजाज़त दे दें ताकि वो मेरे लिए पानी ला सके। मौला हुसैन तड़प गए और तड़प के फरमाते हैं कि सकीना तुम्हारे कहने पे मैं इजाज़त तो दे रहा हूँ, लेकिन कल जब शिमर तुम्हें तमाचे मारेगा तो यही चचा अब्बास तुम्हें बहुत याद आएगी। अब्बास को इजाज़त मिली। हुसैन ने अब्बास से कहा है कि अब्बास जंग नहीं लड़नी है, सिर्फ पानी लाना है। जानते हैं अब्बास के पास दिफा के लिए, जंग के लिए नहीं, दिफा के लिए सिर्फ एक नेज़ा है। अब्बास मैदान में गए, अब्बास मैदान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 अफराद ने मिलकर अब्बास का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन अब्बास की हैबत इतनी थी कि यजीदियों का बड़ा सा बड़ा जंगजू भी अब्बास के सामने ज़ेर हो जाता था, पिता पानी हो जाता था और पीछे हट जाता था, हैबत से मर जाता था।
अब्बास आगे बढ़े, अब्बास फुरात तक पहुंचे। अब्बास ने मशकीज़े में पानी जमा किया। मेरे मौला अब्बास वापस लौट रहे हैं। वह मौला हुसैन अलम के सहारे बताते जा रहे हैं कि सकीना, ए सकीना, तुम्हारे चचा पानी भर रहे हैं, ए सकीना, तुम्हारे चचा पानी वापस ला रहे हैं। वहाँ अब्बास खैमों की जानिब रवा दवा है। ज़ारे मोहतरम, एक तीर चला और तीर का चलना था कि अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। अब्बास ने अपने दूसरे हाथ में अलम और मशकीज़े को थामा। एक और तीर चला, अब्बास का बाजू कलम हो गया। अलम ज़मीन पे गिर के ठंडा हो गया। अब्बास ने अपने दांतों से मशकीज़ा सकीना को थामा। अब्बास अब भी खैमों की जानिब रवा दवा है। अब्बास के अज़म में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन पा रही। ज़ाने मोहतरम, जब अब्बास के को रोका ना जा रहा था तो एक शकी ने एक तीर चलाया, और ऐसा तीर चलाया कि वो तीर मशकी सकीना को छेदता हुआ अब्बास के सीने में पैवस्त हो गया। ज़ाने मोहतरम, जानते हैं करबला के मैदान में सबसे ज़्यादा मुसीबतें उठाने वालों में एक नाम अब्बास का भी। जानते हैं क्या क्या मुसीबतें उठाई हैं अब्बास ने? एक मुसीबत बाजू अब्बास के कलम, दूसरी मुसीबत सर पे गुर्स अब्बास के लगा, तीसरी मुसीबत, जानते हैं तीसरी मुसीबत क्या थी? आंख में तीर अब्बास के लगा। ज़ाने मोहतरम, चौथी मुसीबत, घोड़े के ज़ीन से ज़मीन पे अब्बास गिरे। आप कहेंगे इसमें बड़ी मुसीबत क्या है? गिर जाते हैं, हाथों से संभाल लेते, लेकिन क्या करें, अब्बास के पास हाथ कहाँ थे? अब्बास के बाजू तो कलम हो चुके थे। जानते हैं अब्बास का कद कितना बुलंद था? इतना बुलंद था कि अब्बास 2 रकाबा सवारी पे सवार हुआ करते थे। और जब अब्बास घोड़े के ज़ीन से ज़मीन पे गिरे हैं तो अब्बास के पास खुद को संभालने के लिए, खुद को बचाने के लिए हाथ न थे। 5वीं मुसीबत, अब्बास जो मशकीज़ा लेके जा रहे थे उसमें से पानी बहा। और जानते हैं जब पानी बह रहा था तो रावी लिखता है कि जब मशकीज़े में तीर लगा, मशकीज़ा छिला, मशकीज़े से पानी बह रहा था। और जो पानी बह रहा था पानी नहीं था, ये अब्बास की उम्मीदें थी जो मश्क से बह रही थी। और वहाँ जब अलम ज़मीन पे गिरा, जब अलम झुकने लगा, जब अलम ज़मीन पे गिरा तो वहाँ हुसैन ने अपनी कमर को थाम लिया। कमर को थाम के मौला फरमाते हैं, अब्बास, अब्बास, तेरे जाने से हुसैन की कमर में दम ना रहा। कायम के दम से आज भी